جی نازش. ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، تعلم تو خوب جانتا ہے، ماں جو نخفی ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو کچھ ہم اعلانیہ کرتے ہیں، ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک دم سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی مضمون چینج ہو گیا ہو. پچھلی آیت میں یہ تھا کہ اے میرے رب، میں نے آباد کیا اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں جو بغیر کھیتی کے ہے، اور جو تیرے گھر کے حرمت والے گھر کے پاس ہے، اور اے میرے رب وہ سب قائم کریں نماز کو، اور کچھ لوگوں کے دل اس طرف پھیر دے تاکہ ان کی طرف مائل کر دے، اور ان کو ثمرات سے رزق دے تاکہ یہ شکر ادا کریں. تو اچانک اگلی آیت میں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ایسے لگتا ہے کہ جیسے مضمون انٹائرلی جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. کیا آپ کو بھی ایسے محسوس ہوتا ہے یا کوئی کنیکشن کوئی فیل ہوتا ہے پچھلی آیت سے؟ جی آواز آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے. ہاں جی، تو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ میرا سوال سمجھ میں آیا ہے؟ بولے تو صحیح. سر غور کر رہے ایکچولی اندر نا شور ہو رہا تھا تو میں نے مائک نہیں آن کیا، غور سے میں نے بات نہیں سنی ہے. جی باقی سر اس میں یہی کہا نا آپ نے کہ سوال ایک دم سے چینج ہو گیا ہے کہ پہلے وہ دعا کر رہے تھے اور میں سرپرائز ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دم سے نا مضمون سبجیکٹ چینج ہو گیا ہے. یشکرون کے بعد جو ہے نا فوراً ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. تو کیا ایسے ہی ہے، ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ یشکرون تک آیت ختم ہوگی، اس کے بعد ایک نیا مضمون شروع ہو گیا؟ سر جو ظاہر کرتے چھپاتے اس میں مطلب گناہوں کا شاید وہ اپنا کوئی کرنا چاہ رہے ہیں. اور کوئی بادیاشی کے علاوہ اور کوئی شیئر کرنا چاہے کوئی بات؟ اچھا معیزہ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی. جی معیزہ. پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی اور بچے کو ادھر چھوڑ دیا، تو آگے وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی تو یہ بھی جاننے والا ہے کہ میں نے انہیں کس مقصد کے لیے چھوڑا اور کس مقصد کے لیے نہیں چھوڑا، میرے دل میں جو ہے وہ تو خوب جانتا ہے. یہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہے، قریب قریب ہے. دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ٹیلے کے پیچھے جا کے، جہاں سے بیوی اور بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور کہا تھا کہ اے میرے رب، میں نے ان کو یہاں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ دیا ہے، اور جہاں کھیتی کوئی نہیں ہے، آپ کا حرمت والا گھر ہے، اور یا اللہ یہ نماز قائم کریں اور کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دیں اور ان کو ثمرات سے رزق دے تاکہ یہ شکر کریں. اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ ہے میرے رب تو جانتا ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کی انٹینسٹی میرے دل میں کتنی ہے، کتنی شدت سے میں بول رہا ہوں، وہ بھی یا اللہ تو جانتا ہے. یہ انٹر لنکڈ ہے یہ آیات، یاد رکھیے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ اے میرے رب، یہ جو میں نے دعا مانگی ہے، یہ ظاہر سی بات ہے اونچی آواز سے مانگی ہے، تو یہ جو میں اونچی آواز میں مانگ رہا ہوں یہ بھی تو جانتا ہے، اور میرے دل میں جو درد، جو غم، جو شدت ہے، یا اللہ اس کو بھی تو جانتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے. وما یکفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ جملہ معتذرہ کہتے ہیں اس کو، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا فکرہ نہیں ہے، تو شاید جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ پر. ہو سکتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی فکرہ ہو. تو بات کلیئر ہوگی، پوائنٹ کلیئر ہو گیا. جی جی سر. جی سر. جی اچھا جی آگے اگلی آیت. الحمد تمام تعریف للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الذی وہ جس نے
वहाबा अता किया मुझे, दिए मुझे, तोहफे दिए मुझे, ली मेरे लिए, अलल किबरी बुढ़ापे में, इस्माइला इस्माइल अलैहिस्सलाम व इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम, इन्ना बेशक रब्बी मेरा रब लसमी उद्दुआ अलबत्ता खूब सुनने वाला है दुआ को, पुकार को। यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो तब पैदा हुए थे जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 81 साल थी। 81 ईयर्स ओल्ड थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए और उसके कई कई बाद जो है वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो ये रब ताला का जो है वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, आपके लिए तारीफें हैं सारी, क्योंकि आपने मुझे जो है वो इस बुढ़ापे में जो है औलाद दी। औलाद दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम। और सर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े थे हज़रत इसहाक से? जी जी जी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से। और बेशक मेरा रब खूब सुनने वाला है दुआओं का। अगली आयत। रब्बी जअलनी, ए मेरे रब बना दे मुझे, मुकीम सलाती कायम करने वाला नमाज, वमिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद में से भी, रब्बना ए हमारे रब, वतकब्बल और तू कबूल फरमा, दुआ मेरी पुकार मेरी दुआ। अब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम में एक और दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह मुझे बना दे कि मैं नमाज को कायम करने वाला बन जाऊं और मेरी औलाद भी नमाज को कायम करने वाली बन जाए। या अल्लाह मेरी इन दुआओं को कबूल फरमा। नमाज को जो क्यों कायम किया जाता है जी? नमाज क्यों पढ़ी जाती है? नमाज पढ़ना नहीं आता कभी भी कि नमाज को पढ़ो, बल्कि नमाज के साथ हमेशा ये आता है नमाज को कायम करो। तो नमाज क्यों कायम की जाती है जी? जी आप लोगों से सवाल मैं कर रहा हूँ। अल्लाह से ताल्लुक के लिए। जी अल्लाह ताला से ताल्लुक के लिए। सूरह ताहा में हमने पढ़ा था, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था वह अकीमिस सलाता लिज़िक्री, कि नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। देखें, अगर नमाज हम पढ़ते हैं और नमाज पढ़ के फारग हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने अल्लाह ताला से मुलाकात की है कि नहीं की, तो आप समझ जाएं फिर आपकी नमाज की क्या पोजीशन है। लेकिन अगर नमाज पढ़ने के बाद आपकी कैफियत ये हो कि आप अल्लाह ताला से मुलाकात करके फारग हुए हैं, तो फिर समझ लें कि आपकी नमाज जो है वो अच्छे दर्जे की है। और पूछा गया कि एहसान क्या है नबी अलैहिस्सलाम से, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह कर कि जैसे कि तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये नहीं होता तो कम से कम इतना तो करो, इतना तो सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो मोमिन की सारी जिंदगी, सारा डे एंड नाइट्स जो है वो मोमिन की इबादत है। लेकिन नमाज एक खास किस्म की इबादत है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि नमाज को इस तरह अदा करें कि जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। नमाज का तर्जमा किस किस को आता है आप में से? मुझे आता है। कौन, ये कौन है? मैं हूँ सर। अच्छा, आशीबाजी हैं। और किसको आता है नमाज का तर्जमा? सर मुझे भी आता है। चंदा को भी आता है। और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? सर मुझे आता है पर पूरा नहीं आता, आता है। अच्छा, बाजी नबीला ने भी जवाब दे दिया, बाजी आशी ने भी जवाब दे दिया। एनी बेटा? हाँ, सर मुझे भी आता है। नहीं मामू। अच्छा, एनी को नहीं आता। इरसा? जी आता है। सर मुझे भी आता है। बाज़ औक़ात जब मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, नमाज में इतनी लज्जत होती है ना, इतना मजा आता है, मैं नमाज में आपको बता नहीं सकती। मुझे उस वक्त इससे ना फीलिंग होती है कि मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हूँ। अच्छा बाज़ ठीक है, औक़ात ऐसी होता है, ठीक है। अनुष बाज़ औक़ात बेटा, होता है, ज्यादातर नहीं होता। अनुष आपको तर्जमा आता है? अनुष? सर अनुष नहीं है। अनुष इमरान जो है वो
अनुश इमरान क्लास में नहीं है सर। अनुश इमरान आई हुई है, ये देखें ये कौन है फिर? खैर मिनाहिल बेटा आपको आता है तर्जमा? जी आता है। और बाजी रहीला? मुझे भी आता है, सही जी पूरा नहीं आता लेकिन मुझे आता है। अच्छा, ये साइम हमाद, जी चैट में लिख दें अगर बोलना नहीं चाहते। मुझे बताएं कि नमाज का तर्जमा अगर नहीं आता तो हम जो है ना क्लास में थोड़ा सा टाइम जो है वो नमाज के तर्जमे के लिए भी निकाल लें। 5 मिनट जो है वो नमाज के तर्जमे के लिए भी निकाल लें हम। निकाल तो लें। हाँ, सब निकाले। नमाज को जो है वो इस तरह कायम करें कि जैसे आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। और अगर ये मुमकिन नहीं है, जी पूरा नहीं आता, ठीक हो गया जी, तो हम जो है इंशाल्लाह 5 मिनट जो है वो उसके लिए भी मुख्तस कर देंगे। स्लाइडें पड़ी हुई हैं नमाज की भी, तो इंशाल्लाह नमाज का तर्जमा भी कर लेते हैं। रब्बाना व तकब्बल दुआ, ए मेरे रब तू मेरी दुआ सुन ले। और ये ज़ुर्रियत के लिए जो है भी ज़ुर्रियत के लिए मांगी जा रही है कि मेरी औलाद भी जो है वो नमाज कायम करने वाली बन जाए। रब्बना फिरली, ए हमारे रब मुझे बख्श दे, वली वालिदैया और मेरे वालदैन को, वलिल मुमिनीना और सब मोमिनों को, यौमा जिस दिन यकूमु कायम होगा अल हिसाब हिसाब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और दुआ मांगी कि या अल्लाह तू मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे और सब मोमिनों को भी बख्श दे। किस दिन? क़यामत वाले दिन। अच्छा, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप थे ना वो मुशरिक थे। अब कुछ उलमा कहते हैं मुशरिक के लिए जो है ना वो मगफरत की दुआ नहीं है, याद रखिएगा, मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ हम नहीं मांग सकते। तो कुछ उलमा कहते हैं कि शायद ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ उस वक्त मांगी जब ये कानून लागू नहीं हुआ था कि मुशरिक के लिए दुआ नहीं मांगनी चाहिए। और कुछ उलमा कहते हैं कि चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब घर छोड़ के गए थे, अपने बाप से वादा किया था कि मैं आपके लिए मगफरत की दुआ मांगूंगा, तो शायद उस रिस्पॉन्स में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांग ली। बहरहाल बड़ी जय्यद किस्म की दुआ है, हर नमाज में पढ़ा करे कि या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और या अल्लाह मेरे वालिदैन को भी बख्श दे और मोमिनीन को भी बख्श दे योमा यकूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम होगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और दुआ भी मांगी हुई है, वला तुहजिनी योमा युबआसून, कि या अल्लाह जब तू जिस दिन तू क़यामत वाले दिन लोगों को उठाएगा ना, वला तुहजिनी, या अल्लाह मुझे गमगीन ना करना, मैं गमज़दा ना रहूं उस दिन। तो इस तरह की दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा सबक एंड हो गया। नेक्स्ट वीक जो है ना मंडे को भी आपकी क्लास 7:30 बजे होगी। उसके बाद ऑनवर्ड रूटीन में 6:30 बजे क्लास जो है वो हुआ करेगी। कोई बात आपने शेयर करनी है, कोई पूछनी है कोई बात?